Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 168. Honorable Minister, first supplementary Shri Ashok Rao, Shankar Rao Chauhan. Honorable Chairman, sir, this is a very important question relating to our internal security of a country and definitely our fight against terrorism. We cannot forget the 26/11 tragedy that struck our country when our financial capital, Mumbai, was attacked by terrorists, and this attack was sponsored by none other than our neighbor, Pakistan. That dastardly terrorist attack was planned across the border and executed here on our soil. The terrorists who had attacked Mumbai, everybody knows that after the investigations have come out, was through the sea route. In the afterwarmth of that terrorist attack, it was decided that maritime security of our country would be enhanced, continuous vigilance and patrolling of our sea coast, modernization of state police, coastal police and coast guard would be given a priority. I'm just coming to that. Chairman, sir, the answer given in today's question is rather more technical than more specific as I had requested. Because it says that 28 boats have been given to the state government in phase 1. Sir, your supplementary. Yeah. Chairman, sir, the state government has sent a proposal, whereas the answer is that in phase 2, there is no provision or there is no, it has been concluded and there is no question of implementing the phase 2. The government of Maharashtra has sent a proposal that in order to enhance the security and maritime security and coastal security scheme, under this scheme, additional boats have been demanded from a long time. I would urge upon the minister that in view of the threat to the coastal states, especially Mumbai, where we had seen the 26/11 attacks and similar threat perception also exists in other states also, will the Honorable Minister consider, irrespective of phase 2, phase 3, whatever it is, give a highest priority to Mumbai and sanction the additional boats which have been demanded by the state government and even not only sanction it, immediately see that they are made available to the state government so that this proposal is considered highest priority. Honorable Minister. माननीय सदस्य ठीक ही कहे कि 26/11 का वह आतंकवादी हमला जो मुंबई में हुआ था, वास्तव में वह काफ़ी दुखद था और सावधान होने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए वह एक बड़ा सबक भी हम सब लोगों के लिए था। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के साथ ही तटीय सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन माननीय सदस्य द्वारा जो महाराष्ट्र और मुंबई के संदर्भ में कहा गया, सर, CSS योजना चरण के दौरान जो भी संपत्तियां, उसके साथ जो नौकाएं राज्यों को दी गई थी, उसकी एक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्यों द्वारा नौकाओं का समुचित उपयोग तकनीकी जनशक्ति की कमी के कारण तथा समुद्री यात्रा क्षमता के अभाव और रख रखाव के अभाव में नहीं हो पा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र राज्य के लिए जो प्रस्तावित 14 नौकाएं थी और उसके साथ साथ अन्य राज्यों और यूटी के लिए भी 225 थी, उस नौकाओं की खरीद की आवश्यकता तत्काल नहीं है और वह आगे इस निर्णय के साथ आगे बढ़ा। लेकिन महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा सदन को भी, देश को भी और माननीय सदस्य को भी कि समग्र तटीय सुरक्षा के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। 3 बैठकें उसकी हो चुकी है और सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है और यह समिति बहुत ही तत्परता के साथ
विचार कर रहा है। विचाराधीन यह समिति के अंतर्गत सारे तत्व हैं और स्टेक होल्डरों के परामर्श भी बहुत मुस्तैदी से किया जा रहा है। महोदय, तटीय सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री अशोक राव शंकर राव चौहान। सभापति जी, अभी जो जवाब दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि मामला बहुत गंभीर है। स्टेट के पास अगर एडिक्वेट ट्रेनिंग वाला इशू है तो ट्रेनिंग तो इशू कोई सीरियस नहीं, वहाँ पर स्टेट इम्पार्ट कर सकती है। पर अचानक कोई घटना घटी जब हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ बोट्स ना हो, ये कोस्टल एरिया का इशू है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इसको टॉप प्रायोरिटी दे। ट्रेनिंग तो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है। सप्लीमेंट्री सभापति महोदय, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर provides financial assistance and weapons equipments under the scheme for modernization of state police force. ये जो स्टेट की मॉडर्नाइजेशन होती है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया gives a lot of money for various states. How much assistance has been asked and provided to the Maharashtra government by the Ministry of Home Affairs, and would the MHA enhance and ensure timely disbursement of the funds which have been allotted to Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, एक तो जो प्रशिक्षण की चिंता व्यक्त की गई, सरकार ने तटीय सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रशिक्षण अकादमी ओखा जो अहमदाबाद में है 441 करोड़ के प्रावधान के साथ उसको प्रारंभ किया है और उसके अच्छे भी परिणाम आ रहे हैं। और जहाँ तक वित्तीय सहायता की बात है महोदय, तो मैं उसको प्रकार में ज़रूर महोदय को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के संदर्भ में, ऐसे देश के संदर्भ में भी अगर जानने के लिए अगर उनकी कोई अगर विचार आता है तो मैं बताऊँगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी 19 तटीय पुलिस स्टेशन और 32 चेक पोस्ट स्वीकृत किए गए और 28 नावें, 32 जीप और 71 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई। सब में सर पैसे लगते ही हैं। 14 जेटियों के उन्नयन के लिए 64 करोड़ 58 लाख रुपए अतिरिक्त धनराशि दी गई है महाराष्ट्र को। 24/7 निगरानी के लिए 5 रडार स्टेशन, 1 रिमोट ऑपरेशन और 1 क्षेत्रीय परिचालन केंद्र स्थापित किए गए हैं और कई रेडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त गश्ती भी की जा रही है। 820 सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पूरे तटरक्षा की डिजिटल मानचित्रण कर इंसिडेंट मैनेजमेंट तथा संपत्ति प्रबंधन द्वारा प्रतिक्रियाएं भी बेहतर की जा रही है। कोस्टल पुलिस की ट्रेनिंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तटीय निगरानी नेटवर्क तथा राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना का भी क्रियान्वयन हो रहा है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हम राज्यों को इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं महोदय। और महोदय ने सांसद महोदय चिंता कर रहे थे कि हम यह बड़ा विषय है, तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपकी अनुमति होगी तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं मैं बता सकता हूं महोदय। क्षमता वृद्धि 58 चौकियों के साथ साथ 204 समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। मैं जो अपना 11,000 किलोमीटर की जो कोस्टल एरिया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ सर, 800 से अधिक वाहन दिए गए हैं। प्रशिक्षण के विषय में हम बताएं कि 441 करोड़ से प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। निर्बाध संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली कंप्लांट की मंजूरी महोदय की गई है। समुद्री रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि जो हमारे गैप्स होते हैं या जो सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी नेटवर्क को स्थापित करके हम उसको सर सुदृढ़ बनाते हैं। संयुक्त तटीय अभ्यास जो बहुत ज़रूरी है वह महोदय किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया की गई है और 200 से 4 कुल नौकाएं की क्षमता जो है वह 12 टन की और 5 टन की, यह तो
उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपने तटों की रक्षा की और समुद्री सीमाओं की। उसमें नेवी बहुत ही संसाधन संपन्न होकर और अभी जितने आविष्कार और निर्माण अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार उठाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विजन में, उसके साथ जो कोस्ट गार्ड है उसको भी सुदृढ़ कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड को भी नौका के साथ साथ जो जहाज दे रहे हैं उस पर हेलीकॉप्टर से लेकर हम किसी भी दुश्मन के या वैसे कोई बाहरी तत्व जो राष्ट्र विरोधी है आए तो उससे हम निपट सकते के इतना सक्षम बनाया गया। साथ साथ जो मेरीन पुलिस है जो राज्य देखती है, राज्यों के लिए भी हम लोग आग्रह करते हैं और मेरीन पुलिस के लिए भी हम सहयोग यहाँ से कुछ मदों में हम जरूर उपलब्ध कराते हैं। तो हम हर प्रकार से स्तरीय तटीय सुरक्षा को समग्रता लाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह सरकार संकल्पित है।